Hello everyone, I am Devanshu Sharma and we are back with another one-shot revision video for Factorization Class 8. So in this topic, we are going to see what are factors, how to do factorization using three different methods, how to divide two polynomials or algebraic expressions. So without any further delay, we'll start the topic. So first of all, let's try to understand what are factors. So if an algebraic expression is written as a product of numbers or expressions, then each of these numbers and expressions are called the factors of given algebraic expression, and the expression is called the product of these expressions. For example, let's take an example and try to understand it. So कोई सा भी एक एक्सप्रेशन अगर जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, so this is basically equal to x plus 2 into x plus 3. Okay, we'll understand how this factorization happened, but abhi ke liye we are going to see what are factors. So कोई भी expression किसी भी variable या number के product के form में जब हम शो करते हैं, जैसे कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को वी कैन रिप्रेजेंट एज x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, तो दो एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जब मैंने उसको जो एक्सप्रेशन है उसको शो किया, सो आई कैन से दैट इन दिस x प्लस 2 एंड x प्लस 3 जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, इन दिस x प्लस 2 एंड x प्लस 3 आर गेटिंग मल्टीप्लाइड, तो इनको फैक्टर्स बोलते हैं। और ये जो x प्लस 2 एंड x प्लस 3 का मल्टीप्लिकेशन है, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन। I hope we are able to understand what are factors and what is factorization. Let's try to understand it better. So factorization, when we factorize an algebraic expression, we write it as a product of factors. जैसे हमने x square plus 5x plus 6 को लिखा था x plus 2 into x plus 3, जब हम उनके फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं उसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। Okay, great. So, first of all, let's try to identify what are the factors of a monomial. Okay, so let's start with the first example, which is 5xy. तो ये जो 5xy है ये किन के मल्टीप्लिकेशन से बना है? So I would say that 5xy would be 5 into x into y. So I would say that the factors of 5xy are 5x and y. Similarly, for the next one, 3x square y, I can say that this is 3 into x into x into y. So the factors of this is 3x, x and y. And similarly the third one, 12x square. 12x square को ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या break कर सकता हूँ? Can I say that it is 2 into 2 into 3 into x? इससे ज़्यादा नहीं break कर सकता. Okay, so the factors are 2, 2, 3, x and x. I hope we are able to understand what are the factors of a monomial. So now we are able to understand what are the factors of a monomial. Now we are going to see what are the common factor and the highest common factor. तो कॉमन फैक्टर तो नाम से ही पता लग रहा है ना कि सबके फैक्टर निकाल लो और देख लो कौन सा चीज कॉमन है। सो लेट्स डू दैट। सो 3x में 3x को मैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ द फैक्टर्स के फॉर्म में लिखूंगा, सो इट वुड बी 3 इंटू एक्स। 21x स्क्वायर, 21 को ज्यादा से ज्यादा क्या ब्रेक कर सकते हैं? 3 इंटू 7, उससे ज्यादा ब्रेक तो नहीं होगा, इंटू एक्स एंड 15xy, दिस विल बी 3 into 5 into x into y. Now we are going to see what are the common things in all the three. So I would say that 3 तो तीनों में कॉमन है और साथ में एक x भी कॉमन है तीनों में। So क्या बोल सकते हैं? That the common factors are 3 and x. These are the common factors. And if I want to calculate what is the HCF, that is highest common factor. सबसे बड़ा common factor क्या है दोनों में? तो ऐसा बोल सकता हूँ 3 into x. जितने भी common factors हैं सबको multiply कर दोगे तो आपके पास highest common factor आ जाने वाला है. Perfect. Now let's see what is the highest common factor of 3x and 21a cube b to the power 7 and 35a to the power 5 b to the power 5.
So in this, we can say that 3x, then 21 a cube b to the power 7 and 35 a to the power 5 b to the power 5. अभी तीनों में like in these two, a का टर्म इज देयर बट a का टर्म यहां पर तो नहीं है, 3x में नहीं है, तो a तो कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। सिमिलरली b का टर्म सेकंड और थर्ड वाले में है लेकिन फर्स्ट वाले में नहीं है, सो a और b तो कॉमन फैक्टर नहीं हो सकते। नाउ लेट्स ट्राई द कॉमन फैक्टर वाला थिंग ऑन द नंबर्स। सो 3, 21 and 35. What is the HCF of 3, 21 and 35? That is equal to 1. मतलब तीनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, ना ही a आ रहा है, ना ही b आ रहा है, ना ही कोई नंबर आ रहा है। सो आई वुड से दैट द कॉमन फैक्टर इज 1। ठीक है, clear, great। Now let's start with what are the different methods of factorization, and the first method is method of common factors। इसमें क्या करते हैं कि आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें आप HCF, that is the highest common factor, you take out as common। मतलब 2 into x and 4, तो 2x और 4 में क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 into x प्लस 4 को 2 into 2 लिख देता हूं। अभी दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे 2 कॉमन दिख रहा है इन बोथ द टर्म्स, सो आई टेक दैट 2 आउट एज कॉमन। तो मैं इस 2 को बाहर ले जाऊंगा, अंदर क्या बचेगा, पहले टर्म में खाली x बचा और दूसरे टर्म में क्या बचा, खाली एक 2 बचा। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन। हमने डेफिनेशन क्या देखी थी कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में जब मैं कन्वर्ट कर दूं एक एक्सप्रेशन को, दैट इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन। यहां पर दो फैक्टर्स क्या होंगे, 2 एंड x प्लस 2, दोनों के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। सो दैट इज द फैक्टराइजेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। ग्रेट, एक और क्वेश्चन देखते हैं। 12a स्क्वायर बी प्लस 15ab स्क्वायर, तो I'll write it down again। अभी सो 12 और 15 में सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, 12 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सोचो, दैट इज इक्वल टू 3। सो आई राइट डाउन 3 हियर। ए स्क्वायर और ए टू द पावर 1 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जो छोटा वाला पावर है। ठीक है, तो a टू द पावर 1 एंड b स्क्वायर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, दैट इज b। सो 3ab मैं बाहर ले लेता हूं। नाउ दिस 12a स्क्वायर b, अच्छे से सुनो, 12 में से 3 बाहर चला गया, 12 बनता किससे, 3 इंटू 4, तो 3 तो बाहर गया, अंदर क्या बचा, खाली 4। ए स्क्वायर में से 2 ए थे, उसमें से एक बाहर चला गया, तो एक ए बचा, और बी भी एक ही था, बी तो एक ही था, वो बाहर चला गया, सो देयर इज नो नीड टू राइट बी देयर। प्लस इसमें देखते हैं, 15 इज 3 इंटू 5, 3 तो बाहर चला गया, तो बचा मेरे पास खाली 5। ए की पावर 1 है, वो पूरा पूरा बाहर है, और बी की पावर 2 है, उसमें से एक बाहर चला गया, तो अंदर बचा 4a plus 5b multiplied by 3ab. That is basically the factorization of 12a square b plus 15ab square. एक और क्वेश्चन देखते हैं। Okay, so in this again we are going to do the same thing. So देखो, सबसे पहले तो 12, 16 और 4 में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है। एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर और एक्स टू द पावर 5 में सबसे कॉमन क्या है, एक के पास पावर 3 है, एक के पास पावर 4 है, एक के पास पावर 5 है, तो मैं ऐसा बोलूं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, और y टू द पावर 4, y टू द पावर 5 एंड y टू द पावर 2 में से y टू द पावर 2 कॉमन ले लेता हूं। जब भी हम एक्सपोनेंट्स को देखते हैं ना, जैसे a क्यूब, a स्क्वायर, a टू द पावर 4 एंड सो ऑन, उनमें से जब कॉमन लेना होता है तो सबसे छोटा वाला पावर बाहर ले लिया करो। करेक्ट है, एंड इन साइड विल बी लेफ्ट विथ 4 इंटू 3 12, 3 x है, उसमें से 2 बाहर चले गए तो एक बचा, 4 y हैं, 2 बाहर चले गए तो 2 बचे, प्लस 4 इंटू 4 16, दोनों x बाहर चले गए, x स्क्वायर है, और y टू द पावर 5 में से 2 बाहर चले गए तो 3 बचे, माइनस 4 था, 4 पूरा पूरा बाहर चला गया, सो वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग डाउन हियर, एंड x टू द पावर 5 में से 2 बाहर चले गए, एंड वी आर लेफ्ट विद x क्यूब
inside y square is already taken outside. This is the final factorization of the particular expression. Okay, great. So अभी एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन करते हैं इन द सेम मेथड. इन दिस वी कैन सी दैट इन बोथ द टर्म्स देयर इज अ बाइनोमियल विच इज कॉमन. तो अगर मैं 2x प्लस 5 कॉमन ले लेता हूं यहां पर, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म में खाली 7 बचता है, तो अंदर 7 लिखा, और सेकंड टर्म में खाली 3 बचता है, तो प्लस 3 लिखा. This will be equal to 7 plus 3, that is 10 into 2x plus 5. This is the final factorization. इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, 2 into 5 into 2x plus 5. आपने 10 को भी further break कर दिया. This is your call if you want to break that 10 into 2 into 5 or not. Okay. Next method आता है by regrouping the terms. Now, as we can see in this, directly common कुछ नहीं निकल रहा चारों terms में से. लेकिन अगर if I look closely, I can see that 2xy और 2y में से 2y common आ रहा है. So I'll take this 2y common. Inside I'm left with only x plus 1. Similarly, 3x plus 3 में से 3 common आ रहा है, and inside we are left with again x plus 1. अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया, लास्ट पेज पे क्वेश्चन किया, इन दैट बाइनोमियल कॉमन ले रहे थे. यहां पर भी x plus 1 is the binomial which is common in both the terms. So I'll take it out as common, and inside I'll be left with 2y plus 3. And that would be the final factorization of this expression. इसी पे we'll try to do one more question so that you can get a proper clarity of the concept. So x square plus xy plus 8x plus 8y. अभी फिर से first method से काम नहीं चल रहा. Directly I cannot take anything out as common. One common आ रहा है चार terms में से. So I take use of regrouping of terms. So first two terms में से I can take x as common. Inside I'll be left with x plus y. And second two terms में से I can take 8 as common, and inside I'll be left with x plus y again. अभी दोनों terms में x plus y same है, common है. I'll again take it out as common, and inside I'll be left with x plus 8. Final factorization of this. Okay, so first method हमने किया factorization by common taking. Okay, बाहर एक common निकाल लो और factorize हो जाता है. Second हमने किया by regrouping of terms, and the third method of factorization is by using the identities. I hope you guys have seen the algebraic expression and identities का video, और उसमें हमने we have talked about what are the different identities that we can use in algebraic expressions, right? So we will use these identities in factorizing the algebraic expressions. So just to give a recap, what are the different identities? So these are the three identities that we need to remember, and the fourth one we are going to discuss a bit later. Okay, so a plus b ka whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. A minus b ka whole square is equal to a square minus 2ab plus b square, and a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. And we are going to use these identities. Let's do this question. Okay, so 9a square minus 16b square. So this 9a square can be written as 3a ka whole square minus 16b square, which can be written as 4b का whole square. अभी ये वही तो हो गया, something square minus something square. That is the third identity. तो इसको मैं something plus something into something minus something लिख दूंगा. So this will be 3a plus 4b into 3a minus 4b multiplication of two factors, and that's how we get the factorization of 9a square minus 16b square. Let's move on to the next question. थोड़ा सा अलग है. अगेन इसमें तो डायरेक्टली लगा दो कि थर्ड आइडेंटिटी समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर. वी ऑफन गेट कंफ्यूज्ड विद कि ये तो बाइनोमियल है, इसमें कैसे लगा दो. नहीं लगा सकते हो. सो समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, इसको पहले प्रॉपरली लिख लेते हैं. 3a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 3c का होल स्क्वायर.
होल स्क्वायर होना जरूरी है, डायरेक्टली 9 को यूज नहीं कर सकते। ओके, सो समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, पहले दोनों का एडिशन लिखो, बाद में दोनों का सब्ट्रैक्शन लिखो और मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज ऑल वी नीड टू डू। सो 3a minus b plus 3c multiplied by 3a minus b minus 3c, खत्म। as simple as that। okay, okay, नाउ अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। अगेन दिस इज थर्ड आइडेंटिटी, समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर। तो क्या करूं, पहले दोनों का एडिशन कर दूंगा, बाद में दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दूंगा, एंड वी विल मल्टीप्लाई बोथ द टर्म्स, बोथ द एक्सप्रेशंस। सो x माइनस वन प्लस एक्स माइनस टू, एक बार दोनों का एडिशन कर दिया, फिर x माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू, एक बार दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दिया। So this will become x minus 1 plus x minus 2 and this will be x minus 1। क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन बाहर है तो ब्रैकेट खुलते ही अंदर के साइन सारे चेंज हो जाने वाले। सो इट विल बिकम x minus 1 minus x plus 2। करेक्ट है, इसमें x और माइनस x कैंसिल आउट हुए, x प्लस x बना 2x, माइनस वन माइनस टू बना माइनस थ्री, मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन प्लस टू, दैट इज इक्वल टू वन। सो दिस इज 2x माइनस थ्री। क्लियर, ग्रेट। अभी परफेक्ट स्क्वायर, फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी, अभी हमने थर्ड आइडेंटिटी यूज करी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस वेयर वी कैन यूज द फर्स्ट एंड द सेकंड आइडेंटिटी। So in this, I can see that I can take help of the first identity because this is x square, okay? 16 को मैं 4 का स्क्वायर लिख देता हूं और 8x को मैं प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 लिख सकता हूं और बीच में प्लस का साइन। ठीक है, तो ये तो ऐसा ही हो गया ना, ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये 2a इंटू बी ही तो है। करेक्ट, सो दिस विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, द क्वेश्चन वुड बी इक्वल टू, द सोल्यूशन वुड बी इक्वल टू x प्लस 4 का होल स्क्वायर, बिकॉज x a की तरह एक्ट कर रहा है और 4 b की तरह एक्ट कर रहा है। ग्रेट, अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो देखते ही पता लगना चाहिए दैट दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर। I'll write it as a minus b का होल स्क्वायर एंड माइनस c का स्क्वायर। अभी इसमें थर्ड आइडेंटिटी लगाओ, समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, मतलब दोनों का एडिशन, दोनों का सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लाइड। सो a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी माइनस सी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज द फाइनल फैक्टराइजेशन। आई थिंक दिस इज क्वाइट सिंपल एंड यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो हमने जब आइडेंटिटी से फैक्टराइजेशन स्टार्ट किया था, ऐसा बोला था कि एक आइडेंटिटी बाद में यूज करेंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तो यूज कर लिया। नाउ लेट्स start with the fourth identity, which is x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus ab। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। नेक्स्ट ईयर इनके क्वेश्चंस को आप बोलोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। नाउ हियर वेरी केयरफुली, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। नाउ इफ यू आर फॉलोइंग अ सिंपल प्रोसेस तो आप ये क्वेश्चंस बहुत इजीली कर सकते हो। ओके, नाउ क्या करना है हमें, ये जो भी है टर्म, ओके, इसको अलग से लिख दो, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करो एक्स के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, तो ये वैल्यू क्या आई, 6, उसको साइड में रख लो। फिर एक्स का कोफिशिएंट उठाओ और उसको साइड में रख लो। ठीक है, दो नंबर्स आ गए मेरे पास, एक तो आ गया ये 5 और एक आ गया ये 6। नाउ we just have to identify two numbers, let's say that the numbers are a and b। तो वो दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि उन दोनों का समेशन 5 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए। मतलब वो दोनों नंबर्स अगर a और b हैं तो a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 5 एंड a मल्टीप्लाई बाई b शुड बी इक्वल टू 6। अभी मेरे को पता है दैट a प्लस बी 5 और a इंटू बी 6 कब आएगा, जब a 2 और b 3 होगा।
तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या कहता है कि इसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 + 3 में स्प्लिट कर दो प्लस 2 × 3। और हमने जो फॉर्म देखा है a+b × a+c का या फिर x+a × x+b का, तो दिस वुड बी फाइनली रिटन एज x+2 × x+3, okay, using the fourth identity. Now let's do another question on this. So y square minus 21y plus 108. तो 108 that is the constant multiplied with y square का coefficient. तो that will become 108 and y का coefficient is minus 21. Always take care of the signs also. So this is minus 21. अभी ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 108 आना चाहिए और एडिशन -21 आना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि एडिशन के लिए -12 और -9 का एडिशन करूंगा ना तो -21 आएगा, और -12 और -9 का मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 108 आने वाला है। मतलब मुझे वो दो नंबर्स मिल गए एंड नाउ I will replace this -21y as -12 -9y plus -12 into -9, and with the help of the fourth identity मैं इसको बोल सकता हूँ this is y -12 into y -9. ओके, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखनी है, आप फोर्थ आइडेंटिटी तभी अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली व्हेन वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 1 होगा, मतलब वो जो स्क्वायर वाला चीज है ना, एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर हो, जेड स्क्वायर हो, उनका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इफ द कोफिशिएंट इज नॉट 1 यू कैन नॉट अप्लाई द आइडेंटिटी डायरेक्टली। लेट्स सी अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम थिंग। ओके, सो इन दिस z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट इनटू स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट, तो 3 × 2 6 बना एंड z का कोफिशिएंट इज +5। सो ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं 2 एंड 3 हैं? 2 + 3 एंड 2 × 3। सो विल डू द सेम प्रोसेस, 2z स्क्वायर प्लस 2 + 3 × z प्लस 2 into 3 तो लिख नहीं सकते बिकॉज दैट इज नॉट इक्वल टू 6। ओके, नाउ अभी क्या करना है, क्या मैं इसको डायरेक्टली z + 2 × z + 3 लिख सकता हूं? नहीं, इसमें डायरेक्टली नहीं कर सकते। आप ब्रैकेट्स ओपन करो एंड टेक यूज ऑफ द सेकेंड मेथड विच इज बाय रीग्रुपिंग द टर्म्स। देखते हैं। सो 2z स्क्वायर 2 + 3 × z को मैं ओपन करके 2z + 3z और +3 है। अभी 2z स्क्वायर प्लस 2z में कॉमन क्या है? 2z, अंदर क्या बचेगा? z + 1। सिमिलरली 3z + 3 में कॉमन क्या है? 3, अंदर क्या बचेगा? z + 1। So now I can see that z + 1 is common in both the terms and inside we are left with 2z + 3. This is the final factorization of this. Okay, I hope that we are able to understand the third method, which is by using the identities to factorize an expression. Now let's move on to the division part. Okay, अभी division part बहुत simple सा है। Division is the inverse operation of multiplication. We already know this. And if I want to multiply 7 × 8, that is equal to 6. Okay, 2x × 3x square that is equal to 6x cube, सबको पता है, right? अगर इसका उल्टा करने लगूंगा तो क्या होगा? Now 6x cube divided by 2x. For this we need to remember another law of exponent which says that a to the power m divided by a to the power n, that is equal to a to the power m minus n. ओके, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, जब डिवाइड कर रहे हैं तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहां पर क्या है? 6x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x, उसकी पावर 1 ही है, इनविजिबल पावर तो 1 ही होती है। तो 2 को 6 से डिवाइड किया तो 3 तो आ गया ऊपर, एंड x क्यूब डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1, तो x की पावर 3 minus 1 आ जाएगा, and this is 3x square which would be the correct answer. एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सो दैट ज्यादा अच्छे से समझ में आए। -20 x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 10 x स्क्वायर। तो पहले तो ये किया,
So this is equal to -2 तो आ गया after doing the division of the numbers. अब x to the power 4 divided by x to the power 2, remember the law of exponent for division, 4 minus 2, this is equal to -2x square. Okay. Next question, -15 a square bc cube divided by 3ab. So first of all divide the numbers. So 3 into 5 15 होता है. So this would be equal to -5. A square by a to the power 1, तो पावर में 2 minus 1 आएगा, that is 1. B तो B से पूरा कट गया और C cube, this would be your final answer. Okay, this is how we divide two monomials. Now what if अगर मुझे binomial या trinomials को divide करना है, for example this question. अभी इसमें we will again use factorization. क्योंकि हमें लॉन्ग डिवीजन तो आता नहीं है. देयर इज अनदर मेथड व्हिच इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन, जो आप आगे की क्लासेस में देखोगे, अभी 8th क्लास में नहीं है. ओके, सो व्हाट वी नीड टू डू, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 9. तो डायरेक्टली तो डिवाइड नहीं कर सकते. इन दिस व्हाट वी नीड टू डू, हमें न्यूमरेटर को फैक्टराइज करना पड़ेगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 27, हमने फैक्टराइजेशन यूजिंग द फोर्थ आइडेंटिटी तो सीखा है. इसमें एक तो 27 है, एक है 12. दो नंबर्स ऐसे कौन से हैं जिनका एडिशन 12 हो और मल्टीप्लिकेशन 27 हो? आई वुड से 9 एंड 3. 9 प्लस 3 12, 9 इंटू 3 27. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 9 इंटू 3. तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x plus 3 into x plus 9. Numerator will be factorized and will become x plus 3 into x plus 9 whole divided by x plus 9. अभी एक फैक्टर आ गया ना कॉमन, तो उसको हम कैंसिल आउट करेंगे एंड an answer would be x plus 3. This would be our final answer. Okay, so that's all for this video, and I hope that we are able to understand what are factors, what is factorization, and what are the different ways and methods by which we can factorize an algebraic expressions. So I'll see you again in the next video.